Once again, a very good evening to all of you, dear students. As we know, today we have to read the last poem of your book, which is titled as The Duck and Kangaroo. It is the last poem. After that, we have completed each and every poems and as well as chapters from your book. From both book, we can say that. Okay, so now let's start the last poem. It is a very interesting and as well as funny poem which we are going to read, जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और पढ़कर समझेंगे. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड एज वेल एज ये फनी पोएम है. इट इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन, okay, we can say that here the kangaroo and duck, where the duck is requesting to kangaroo that I have to also go other place as you visit several places that I have to also go. Okay, so here by the medium of this poem that the duck is requesting to kangaroo that I have to visit somewhere else also. तो मुझे और कहीं कहीं पे क्या करना है, विजिट करना है. Okay everyone, okay, so we are just going to read and try to understand. तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं. आफ्टर जस्ट टीचिंग यू दिस पोएम आई विल आल्सो प्रोवाइड यू पीपीटी. ओके, डोंट वरी, यू विल गेट ईच and every word meanings to a particular poem where you are unfamiliar regarding that the words, guys. Okay, so let's start. चलिए उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना. चलिए स्टार्ट करते हैं guys. Okay, so this is a poem. You can see that on your screen, The Duck and the Kangaroo. This is a humorous poem of a kind known as nonsense verse by Edward Lear. So first of all, you have to understand about this poem that Edward Lear, who has written this poem, guys? Edward Lear. Who has written this poem? That Edward Lear has written this poem, guys. Okay, getting everyone? Okay, guys. So it has been written by the poet whose name is Edward Lear, who has written this poem. उन्होंने इस poem को लिखा है. यहाँ पे पहले ही लाइन पे लिखा गया है, this is a humorous poem of a kind known as nonsense words. Nonsense words here. यहाँ पे nonsense words का यूज किया गया है. अरे बात समझ में ना. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक टाइप का ये फनी पोएम है, ठीक है ना. और आप बोल सकते हो कि इसका कोई मीनिंग नहीं है. इट मीन्स यहाँ पे शो किया गया है कि इट इज कन्वर्सेशन गोइंग बिटवीन डक एंड कंगारू. द डक एंड कंगारू, ठीक है ना. ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं. जनरली ये शो किया गया है इसमें. आड़ी बात समझ में ना. गेटिंग एवरीवन? नाउ लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस पोएम एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल अंडरस्टैंड. एज वी नो अबाउट दैट इट हैज बीन रिटन बाय एडवर्ड लेयर. ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो एडवर्ड लेयर के द्वारा ये पोएम लिखा गया है. ओके एवरीवन? Okay, guys, so now you have to see. Said the duck to the kangaroo, God gracious, how you hope over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is aboard in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hope like you, said the duck to the kangaroo. Okay, so now first of all we have to understand, guys. हम लोग now you have to understand. Okay guys, you have to understand, guys. यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है. we can understand this. Okay, we can understand very easily. यहाँ पे good क्या लिखा गया है? good gracious. यहाँ पे gracious जो मीनिंग शो किया गया है, it shows that astonishment, ठीक है ना. astonishment को शो किया जा रहा है. और यहाँ पे उसके बाद एक वर्ड यूज किया गया है hope. hope मीन्स क्या होता है? you can see here is a word hope. ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो देखो, यूज अबाउट एनिमल और बर्ड जंप विथ ऑल फीट टुगेदर. यानी ये किसके लिए यूज किया जाता है? तो एनिमल और बर्ड के लिए जो अपने फीट के सहायता से एक जगह से दूसरी जगह जंप करते हैं या जाते हैं, उसके लिए. ओके, एंड यू कैन गेट आल्सो द मीनिंग ऑफ वर्ड्स. ओके, बिलो योर स्टेंजा. स्टेंजा के नीचे आपको इसका मीनिंग भी देखने को मिलेगा. जैसे it has given about nasty, unpleasant या bad. Okay, as same it has given about hope. Okay, used about animal or bird jump with all feet together. ठीक है ना. it used here about animal or bird which jumps together with all the help of their feet. तो उसकी यहाँ पे चर्चा की जा रही है. ठीक है, अब चलो हम लोग देखते हैं. सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, guys. ओके, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बोला पहले लाइन पे फर्स्ट स्टेंजा में हम लोग को गुड ग्रेसियस. यहाँ पे गुड ग्रेसियस कहने का मतलब क्या है? इट शोज शॉर्ट काइंड्स ऑफ एस्टोनिशमेंट.
ठीक है ना, यहाँ पे एस्टोनिशमेंट को शो किया जा रहा है, आश्चर्य को शो किया जा रहा है। कौन कर रहा है? सेड द कंगारू, कौन, सॉरी, सेड द डक टू द कंगारू। कौन बोल रहा है? तो डक बोल रहा है। किससे? कंगारू से। क्या बोल रहा है भाई? समझते हैं। सेड द डक टू द कंगारू, यानी डक बोल रहा है कंगारू से। गुड ग्रेसियस हाउ यू होप, यानी ठीक है ना, ये एस्टोनिशमेंट से भरा हुआ है, ठीक है ना, आश्चर्य से, सरप्राइज से भरा हुआ है, जैसे तुम एक जगह से दूसरी जगह जंप करके जाते हो, घूमते हो, ठीक है ना। हमारी बात समझ में? कहाँ पे? ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, कहाँ कहाँ पे? द फील्ड्स पे, एक जगह से दूसरी जगह जंप करके चले जाते हो। इवन वाटर का भी जो कुछ जगह होता है वहां पे भी तुम जंप करके एक जगह से दूसरी जगह तुम मूव कर जाते हो, ठीक है। एज इफ यू नेवर स्टॉप, और ऐसा मानो कि लगता है कि कभी तुम स्टॉप नहीं होगे, कहीं पे भी एक जगह पे रुक कर नहीं रह सकते हो, ठीक है। अब यहां पर वो क्या कर रहा है? पहले तो वो किसका अप्रिसिएशन कर रहा है, एडमायर कर रहा है? तो कंगारू का। और खुद डक अपने बारे में क्या बता रहा है कि माई लाइफ इज अबोर्ड इन दिस नेस्टी पॉन्ड। ओके, तो नेस्टी मीन्स क्या होता है? अनप्लीजेंट, बैड, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि अगर मैं अपने जीवन की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट माई लाइफ देन इट इज टोटली बोर, बिकॉज आई हैव टू ओनली लिव इन दैट सच काइंड्स ऑफ नेस्टी पॉन्ड, कि इस पॉन्ड में जो एकदम नेस्टी है, ठीक है ना, बैड कंडीशन में है, अनप्लीजेंट सा है, उसी में मेरे को रहना पड़ रहा है। और आड़ी बात समझ में ना, तो यहाँ पे इस लाइन से गाइस वी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजिली, ओके, दैट डक also wanted to live another place like kangaroo, but there was a compulsion that he had to only live in the pond, that's why he was not able to go anywhere else except that the pond। यानी क्या कि इस पॉन्ड को छोड़कर जो, ठीक है ना, डक है ना, वो दूसरी जगह पे नहीं जा पा रहा है। अरे बात समझ में ना, वो कहीं और पे नहीं जा पा रहा है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा बोर फील करता है एक जगह पे रह रहे, जैसे हम लोगों के साथ भी होता है। आप बहुत समय तक अगर एक जगह पे रह लो तो आपको भी बोरिंग फील होने लगता है, दैट यू आल्सो वांट टू गो समवेयर एल्स। हियर दैट द सेम कंडीशन इज हैपनिंग विद द डक अल्सो, यहाँ पे यही कंडीशन डक के साथ भी हो रहा है, ठीक है ना। तो डक भी चाहता है कि मैं कहीं और दूसरे जगह पर घूमूं, अच्छे से थोड़ा सा, मतलब ये जो पॉन्ड है, नेस्टी पॉन्ड है, ठीक है ना, ये मतलब मन उब गया है, कहीं दूसरे और जगह पे मेरे को घूमने को मिले। तो अब देखो ये किससे कंपेयर कर रहा है? अपने लाइफ को कंगारू के साथ। और अभी इसका कन्वर्सेशन भी चल रहा है कंगारू का, तो अभी एडमायर कर रहा है। अब देखो आगे मालूम चलेगा कि वो क्यों एडमायर कर रहा है। ओके, इस बात का आंसर हमें भी मिलेगा, ठीक है ना, हमें मिलेगा कि वो क्यों, व्हाई डज ही, ओके, एडमायर कंगारू हियर, यहाँ पे वो कंगारू को क्यों एडमायर कर रहा है, इसके बारे में भी आंसर मिलेगा, ठीक है ना। तो पहले इस स्टेंजा में, स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स में, लाइंस में, ये पहले कंगारू के बारे में बता रहा है कि कैसे वो होप करता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है इवन, ठीक है, ओके, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। आड़ी बात समझ में ना। और यहाँ पे जो बात हो रही है कि डक जो है एक ही जगह पे, एक पॉन्ड में केवल रहता है, ठीक है। अब देखो, एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, आई विश आई कुड होप लाइक यू, सेड द डक टू द कंगारू। अब देखो क्या बोलता है, और बहुत दिनों से मैं यहीं पे हूं और इससे बाहर कहीं नहीं गया हूं, ठीक है ना, इस पॉन्ड से बाहर कहीं नहीं गया हूं, कि मैं विश करता हूं कि काश मैं तुम्हारी तरह होप कर सकता, जंप कर सकता, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता। और ये सारी बात वो किससे कहता है? तो कंगारू से कहता है गाइस। किससे कहता है? कंगारू से। ओके गाइस, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है सभी को? क्लियर है ना सभी को? बोलो आप सभी मुझे, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो पहले कन्वर्सेशन में, पहले स्टेंजा में हम यही देख रहे हैं कि फर्स्ट यहाँ पे जो डक है वो बात करना, कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करता है कंगारू के साथ, और वही बोलता है कि जिस तरीके से तुम एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हो, जहां मन करे वहां पर घूम सकते हो, तुम्हें लॉन्ग टाइम के लिए कहीं एक जगह पे नहीं रहना पड़ता है। मैं भी वैसे ही चाहता हूँ ना कि सैर करूं, घूमूं, लेकिन मेरा जो जीवन है, किसका? तो डक का। वो बता रहा है कि केवल एक पॉन्ड, वो भी जो बैड कंडीशन में पॉन्ड है, उसमें उसे व्यतीत करना पड़ रहा है गाइस। ओके, तो यही जो है फर्स्ट स्टेंजा में दिया गया है। चलिए इसको और हम लोग थोड़ा सीक्वेंस में और अच्छे तरीके से देखते हैं। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो वी गॉट टू वर्ड्स हियर। फर्स्ट इज दैट नेस्टी, सो वी हैव टू अंडरलाइन दैट वर्ड। The meaning of nesty is unpleasant, bad. Okay, the meaning of nesty is unpleasant, bad. आड़ी बात समझ में ना।
नेस्टी का मतलब क्या होगा, तो अनप्लीजेंट, बैड। और होप बोल रहे हैं, होप यूज अबाउट एनिमल और बर्ड जंप विथ ऑल फीट टुगेदर। तो होप क्या होता है ना, सच काइंड्स ऑफ वर्ड विच वी यूज्ड फॉर एनिमल और बर्ड्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो एक साथ क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जंप करते हैं। गॉट इट एवरीवन? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए एक बार मैसेज कीजिए और बताइए मुझे। यू हैव टू टेक्स्ट मैसेज एंड टेल मी। नो प्रॉब्लम सर, वेरी गुड। अनुष्का गॉट इट सर, गॉट इट, गॉट इट। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड गाइस, चलिए अब समझते हैं। गॉट इट, वेरी गुड प्रज्ञा। I will ask to each and every students, okay, after completing this poem also. Amrit Parashar, no problem, sir. Very good, Amrit. So can we proceed, guys? आगे बढ़े, चलिए। अब देखो यहाँ पे भाई, जो हमारे डक हैं वो अपने फीलिंग को शो कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। मडी डक डैश, देख सकते हो ना कैसे वो बेचारे जो यूज किया है ना कि नेस्टी पॉन्ड में मेरे को रहना पड़ रहा है, देख लो कैसे शो कर रहा है बोल के। समझ में आ रहा है सभी को? बोलो एक बार, मैसेज करना है, ठीक है? देख रहे हो ना कि बेचारा ये जो डक है कितना मतलब उब गया है, टेंशन में है दूसरे को लाइफ को देख के कि मैं कब तक एक जगह पर बैठा रहूंगा। आई शुड बी लाइक कंगारू, कि मुझे कंगारू की तरह होना चाहिए था। अरे बस समझ में ना? यस सर, वेरी गुड। यस सर, वेरी गुड। आशीष राजेश सर, ओके। मूविंग अहेड गाइस, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है, देख रहा है ना यहाँ पे, देखो ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना? देखो, प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कंगारू। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो डक है किससे कह रहा है? कंगारू से, कि प्लीज मुझे राइड दो, ठीक है ना? प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू कंगारू। डक बोलता है किससे? कंगारू से, कि आप मुझे, ठीक है ना, अपने बैक पर बैठा लो और मुझे भी जहां जहां पे तुम घूम रहे हो, आई हैव टू ऑल्सो गो देयर। ओके, तो देखो जो फर्स्ट स्टेंजा पढ़े हैं ना, यहाँ पे हम लोग उसी को समझेंगे। ओके एवरीवन, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो देखो, द डक इज अवे स्ट्रक टू सी द मूवमेंट ऑफ द कंगारू। अब यहाँ पे बोले ना कि एस्टोनिशमेंट की मैंने जो वर्ड यूज किया आपके लिए, सरप्राइज हो जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे सेम कंडीशन है गाइस। ओके, द डक इज अवे स्ट्रक टू सी द मूवमेंट ऑफ द कंगारू। इट एक्सप्रेस दैट द कंगारू कुड होप कंटिन्यूअसली ओवर द फील्ड्स एंड वाटर बॉडीज। ठीक है ना? तो पहला लाइन में क्या बताया गया है कि डक जो है वो मूवमेंट देख के, ठीक है ना, वो मूवमेंट देखकर, वॉक करने का तरीका देखकर कंगारू को क्या हो जाता है, तो सरप्राइज पड़ जाता है, हो जाता है, जिस तरीके से वो एक जगह से दूसरे जगह, फील्ड पर, वाटर बॉडीज पर, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह वो चला जाता है कंटिन्यूअसली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, द डक, बट गाइज, वेट एवरीवन, यू हैव टू मेक आईडी विथ योर ऑन नेम। आपको अपने नेम से ना आईडी बनाना है। ओके, कि बीच में जो ये स्टडी के बीच में ना ये जो डिस्टर्बेंस होता है, रिमूव करना है, ये सब ना करना पड़ेगा इस। दिस इज बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, हमारी बात समझ में ना? ठीक है, तो हम लोग थे कि कैसे वो हॉप करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर वो चला जाता है कंगारू। तो ये सारी चीज एक्टिविटी को देख के हुआ सरप्राइज, दैट द डक वाज सरप्राइज्ड। ओके, okay everyone, the duck's life was boring as it remained in the pond all the time. It wished to see the world beyond the limits of the ponds.
इट विशेस दैट इट कुड ऑल्सो होप लाइक द कंगारू। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजा में यही बताया गया है कि डक का भी यही विश है, बहुत लंबे समय से क्या है कि एक ही पॉन्ड में है, तो वो भी इस पॉन्ड के बाहर की दुनिया को देखना चाहता है। सपोज करो, टेक अ सिंपल एग्जांपल, यू आर लिविंग इन छपरा सिंस योर बर्थ, ठीक है ना, जन्म से आप अभी तक छपरा ही में रह रहे हो, बट यू वांट टू live, you want to see more, okay, state, you want to see more activities, then you have to must go outside from the chapra। अरे बात समझ में, अगर आप और भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को जानना चाहते हो, एक्टिविटीज के बारे में जानना चाहते हो, इवन लैंग्वेज के बारे में जानना चाहते हो, देन यू मस्ट हैव टू गो आउटसाइड फ्रॉम द छपरा। आपको छपरा से बाहर जाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे सेम कंडीशन है, डक के साथ बताया जा रहा है कि डक भी जो है ना, वो एक पॉन्ड के लाइफ को छोड़ के बाहर का लाइफ देखना चाहता है गाइस। अरे बात समझ में ना, बाहर के लाइफ को देखना चाहता है। ओके, तो वो भी चाहता है कि मैं भी विश रहता, काश मेरी भी इच्छा रहती, काश मैं भी कंगारू की तरह एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है ना, हॉप कर कर, इट मींस दैट जंप कर कर, इट मींस वॉक कर कर मैं जा सकता। गेटिंग एवरीवन? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? क्लियर है ना आप सभी को? तो पहले स्टेंजा को एज आई हैव सेड already it has written here, you can read and understand it very easily। आप खुद से पढ़कर इसको समझ सकते हो, it is in very simple language guys। clear all of you guys? is it clear to all of you? just text message, okay, very good, very good everyone। now we have to read the second stanza guys, okay। अब हम लोगों को सेकंड स्टेंजा को पढ़ना है और समझना है। वेरी गुड श्रीजा। प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक सेड द डक टू द कंगारू। सेकेंड स्टेंजा में यहीं से स्टार्ट होता है कि प्लीज गिव मी अ राइड on your back, it means I have to sit on your back and wherever you are going I have to go with you and I can also see the area except, ठीक है ना, from the pond। अली बात समझ में? तो यहाँ पे वो बता रहे हैं, by the medium of that the second stage in the beginning, please give me a ride on your back said the duck to the kangaroo। यानी कि डक जो है रिक्वेस्ट करता है कंगारू से कि आप मुझे क्या करो, ठीक है ना, अपने बैक पे बैठा लो और जहां जहां आप जाओगे घूमोगे, आई हैव टू ऑल्सो गो देयर एंड सी द कंडीशन क्रिएचर्स टू एज वेल एज, ओके। आई वुड सीट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वैक? एज वी स्पीक, it is a language of duck also guys, sound made by the duck, जो कि sound it has been create, it has been reproduced by the dog, sorry, duck, that is called quack। अरे बात समझ में ना? तो साउंड जो कि क्रिएट किया जाता है किसके द्वारा? डक के द्वारा, उसी को क्या बोलते हैं? क्वैक क्वैक। तो बोल रहा है ना कि आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं एकदम स्थिर से, ठीक है ना, ये नहीं कि शैतानी करूंगा, आराम से, प्लीज मुझे आप अपने बैक पे बैठाओ, मुझे आराम से एकदम शांति से बैठना है और जहां जहां आप जाओगे मैं भी आपके साथ उस जगह को, ठीक है ना, उस क्रिएचर्स को, उस नेचर्स को मैं भी देखूंगा और इंजॉय करूंगा, ओके, और केवल बस क्वैक करूंगा, ओनली फॉर एक्साइटमेंट, ठीक है। The whole of the long day through and we would go to the and jelly bolly over the land over the sea, please take me a ride, oh do, said the duck to द कंगारू। अब देखो बोल रहा है ना कि जहां जहां आप जाओगे, ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे क्रिएचर्स के बारे में, ठीक है ना, कि वो बता रहा है कि धरती और समुद्र से ऊपर से गुजरना हो, धरती के तरफ, समुद्र के किनारे से आप जहां से जाओगे, ठीक है ना, उस सारे जगह पर मुझे ले चलो, मैं भी वहां पे चलूंगा और तुम्हारे साथ, ठीक है ना, घूमूंगा, ठीक है। और वो किससे कहता है, रिक्वेस्ट करता है? तो कंगारू से। कौन करता है? डक करता है। ओके एवरीवन, गॉट इट एवरीवन? गॉट इट नाउ? तो देखो यहाँ पे सेकेंड स्टेंजा को और क्लियरली समझते हैं। द डक रिक्वेस्ट द कंगारू टू गिव इट अ राइड ऑन इट्स बैक, ठीक है ना। सेकेंड स्टेंजा में क्या होता है कि जो डक है वो कंगारू से रिक्वेस्ट करता है कि ठीक है कि आप मुझे अपने बैक पे बैठाओ। इट प्रॉमिस दैट इट वुड सिट क्वाइटली, कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं एकदम शांति से बैठा रहूंगा, एंड would just quack all day, और बस quack quack, I will only create a sound। The duck list the place that they would visit as D and Jelly Bolly, it adds that they would hop over the land and sea, ठीक है ना। वो बोलता है कि जहां जहां आप ये ऐसे प्लेस पे जाओगे मैं आपके साथ जाऊंगा और घूमूंगा। ओके एवरीवन, क्या यहां तक सभी को क्लियर है?
देखो यहाँ पे जो यूज किया गया है ना, डी एंड जेली बोली, इट इज अ प्लेस, इट इज अ प्लेस, इट इज द नेम ऑफ अ प्लेस। आ रही बात समझ में ना, ये ज्यादा कुछ नहीं है, क्या है तो नेम है प्लेस का, वहां से बोला है कि वहां से गुजरते हुए, डी एंड जेली बोली से गुजरते हुए समुद्र, और ठीक है ना, समुद्र के किनारों से गुजरते हुए, और मैं घूमते हुए तुम्हारे साथ सैर करूंगा, और बस शांति से बैठा रहूंगा, बस केवल क्वैक क्वैक करूंगा। गेटिंग एवरीवन? नाउ मूविंग अहेड, थर्ड स्टेंजा की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सेड द कंगारू टू द डक, दिस रिक्वायर्ड सम लिटिल रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन? You have to tell me. I'm just waiting for your answer as it has given here. So you can see that, guys, the meaning of reflection, that is thought. Okay, we are talking about thought. यहाँ पे thought की बात होगी, समझ में आ रही बात ना, विचार, आइडिया। यस, वेरी गुड, आइडिया, आइडिया दी थी, वेरी गुड। ओके, अब देखो, सेड द कंगारू टू द डक, अब कंगारू बोलता है, नाउ कंगारू विल स्टार्ट स्पीकिंग। ओके, व्हाट डज ही स्पीक फर्स्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब देखो क्या बोलता है, दिस रिक्वायर्ड सम लिटिल रिफ्लेक्शन, यानी कि मुझे थोड़ा सा विचार करने दो कि शुड आई जस्ट गिव यू चांस टू सिट ऑन माय बैक और नॉट, लेट मी think first about it and after that I will tell. Who is saying such kinds of word? It has been said by kangaroo to duck. सारी बात समझ में? तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कंगारू के द्वारा, किसको? तो डक को कहा गया है, गाइस। गेटिंग एवरीवन? नाउ ठीक है, थोड़ा सा मुझे समय दो, विचार करने दो कि शुड आई जस्ट गिव यू चांस और नॉट, ठीक है ना। तो ये सारा बात कौन बोलता है? हु इज सेइंग सच काइंड्स ऑफ थिंग्स? इट हैज बीन सेड बाय दैट कंगारू। ये कंगारू ये सारे बात को बोलता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक एंड देयर सीम्स बट नो ऑब्जेक्शन व्हिच इज if you let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold and would probably give me to rheumatism, said the kangaroo. ठीक है, देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रोमाटिज्म रेफर्स टू द डिजीज ऑफ रेह्यूमेटिज्म। अब देखो, रेह्यूमेटिज्म क्या होता है ना, एक सच काइंड ऑफ डिजीज होता है। अब बोल रहा है कि देखो तुम इससे क्या होगा ना, बॉडी में पेन होने लगेगा, इट विल क्रिएट द पेन इन होल बॉडी। अरे बस समझ में ना। तो बोल रहा है कि देखो मुझे पहले तो सोचने दो, देखो मेरे को कोई आपत्ति नहीं है तुमको अपने बैक पे बैठा कर घुमाने में, क्योंकि यू आर नॉट सच अ we can say that so fatty that I will feel uncomfortable with you। वो बोल रहा है कि इतना भी नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा मोटे हो कि मैं अगर तुम्हें बैक पे बैठा लूं तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होगा, राइट। बोलता है कि देखो बैठाने में, पहले बोलता है कि मुझे थोड़ा सा सोचने दो, ठीक है ना। उसके बाद बोलता है देखो मेरे को बैठाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मैं अगर तुम्हारी पैर की बात करूं तो वो हमेशा भींगा रहता है, ठीक है ना। पॉन्ड में हो तभी भी भींगा रहता है, और वो ठंड होगा जैसे ही मैं अपने बैक पे बैठाऊंगा, दैट ये क्या होगा ना, इस जो है ये मेरे पूरे शरीर में, इसके कारण, ठंड के कारण, ठीक है ना, और तुम्हारे जो पैर में पानी लगा हुआ है उसके कारण क्या होगा कि बॉडी पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोमाटिज्म हियर? शॉर्ट काइंड्स ऑफ बॉडी पेन, ठीक है। हमारी बात समझ में ना। तो चलिए इसको वन बाय वन, ठीक है ना, समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, देखो कंगारू क्या बोलता है, द कंगारू रिप्लाइड दैट इट हैड टू थिंक ओवर इट, ठीक है ना, कि मुझे इस पर सोचना पड़ेगा, एज आई हैव सेड ऑलरेडी। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही स्टेंजा पढ़ाते वक्त, ठीक है ना, वही सारा कुछ है। द आइडिया कुड बी गुड फॉर हिम बट ही हैड an objection that dogs wet and cold feet could give me it body pains। ठीक है ना, बोलता है कि देखो कि मेरे को वो क्या बोलता है कि थोड़ा सा मुझे सोचने दो, लेकिन एक तो दिक्कत है भाई, तुम्हारा जो पैर है वो क्या रहता है हमेशा, किसका? तो डक का भींगा हुआ रहता है, ठीक है ना। और वो क्या करेगा कि जैसे मैं अपने बैक पे तुमको बैठाऊंगा तो मेरे बॉडी में पेन होने लगेगा, ठीक है ना। हमारी बात समझ में, जब बॉडी में पेन होने लगेगा तो व्हाई शुड आई जस्ट गिव यू चांस। अब ये सोचता है कि एक तो दिक्कत है। अब देखो आगे क्या रिप्लाई करता है, यानी इन द फर्स्ट स्टेटमेंट हैज बीन सेड बाय कंगारू, क्या करता है वो, तो इनको मना कर देता है इनडायरेक्टली, ठीक है, कि देखो मेरे को बैठाने में तो इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ही कारण है, ठीक है ना, एक ही रीजन ये है कि तुम्हारा पैर जो है काफी ज्यादा गीला है, जैसे ही तुम मेरे बॉडी पे आके बैठोगे ये क्या होगा ना, मेरे बॉडी में पेन करना स्टार्ट हो जाएगा, पेन क्रिएट कर देगा। ओके, गेटिंग एवरीवन? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलिए आप सभी, मुझे क्या क्लियर है आप लोगों को?
टेक्स्ट मैसेज एंड टेल मी, मैसेज कीजिए और बताइए मुझे। यस सर, you can also read guys, I am just giving you a chance, you can read and try to understand from your own self। okay, जैसे if you are listening me as you can read it, you can also understand। अभी आप जैसे कि मैं एक बार बोल रहा हूँ, आफ्टर दैट यू हैव टू आल्सो रीड। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है देन यू हैव टू आस्क। अगर अभी आप पूछते हो ना, जैसे कि आप मेरे सामने रीड कर रहे हो, सर इसका मीनिंग समझ में नहीं, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। और उसके बाद जब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ना पीपीटी, एंड इफ यू आर गोइंग टू रीड, डेफिनेटली इट विल कीप इन योर माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा। ओके, सो क्लियर टू एवरीवन, नो ऑब्जेक्शन एनी एज कंगारू? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है गाइस? ओके, नाउ वी हैव टू सी फोर्थ स्टेंजा। सेड द डक, अब देखो डक फिर क्या रिप्लाई देता है। ओके, सेड द डक एज आई सेट ऑन द रॉक्स, आई हैव थॉट ओवर द completely, and I bought 4 pairs of roasted socks which fit my wave fit neatly, and to keep out the cold I have bought a clock, and every day a cigar I will smoke, and all the follow my own dear true love of kangaroo। अब देखो क्लॉक का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, सर्ग। अब देखो यहाँ पे ना इस स्टेंजा में ये क्या करता है कि मैंने इसका भी एक उपाय रखा है, ठीक है ना, मैंने भी इसका एक क्या किया है, ठीक है, मैंने उपाय रखा है, मतलब कि सॉल्यूशन रखा है कि देखो मैंने ऑलरेडी क्या किया है ना, 4 पेयर्स ऑफ सॉक्स, ठीक है ना, गर्म टाइप का जो रहे, मैंने उसको क्या कर लिया है, खरीद लिया है, आई हैव ऑलरेडी, ठीक है ना, अबाउट इट। अब देखो यहाँ पे वेब फिट का मतलब क्या होता है, हैविंग टोज, एक तरह का उसने क्या किया, सॉक्स रखा है, समझ में? तो यहाँ पे वेब फिट जैसे ऐसा ही यहाँ पे बताया गया है, क्या कर लिया हूँ कि सॉक्स खरीद लिया हूँ, और उसके साथ साथ का मैं सेवन करते रहूंगा, जो सिगरेट टाइप का नहीं होता है, आई विल स्मोक, ठीक है, जिससे कि तुमको खो सकता हूँ। ओके, चलिए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं थोड़ा सा, ये स्टेंजा है उसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं पैराग्राफ को, एंड आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड। ओके, नाउ गाइस, अब देखो आवाज नहीं आ रहा है, am I audible everyone? कौन बोल रहा है आवाज नहीं आ रहा है? आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम ऑन योर साइड। सभी को क्लियरली सुनाई दे रहा है ना आवाज? टेल मी, मैसेज करके बताइए आवाज क्लियर आ रहा है कि नहीं। ओके, ठीक है, अब आगे देखते हैं। ओके एवरीवन, अब है ना ऑडिबल? बोलिए आप सभी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर आवाज आ रहा है आप सभी को? क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? ओके, ओके, वेरी गुड। अब देखो, द डक सेड दैट, डक क्या बोलता है, एज इट सेट ऑन द रॉक ड्यूरिंग द डे इट हैड थॉट ओवर इट, इन order to avoid that the duck had bought 4 pair of roasted socks which fitted its shaped fit well. In order to stay warm it would wear a strug and also smoke a cigar every day. The duck would do all this to protect the kangaroo as it was a beloved। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि डक क्या बोलता है कि जैसे कि क्या बात है कि पूरे दिन मैं, ठीक है ना, एक रॉक्स पे, ठीक है ना, बैठा रहूंगा कि जिसके कारण कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना, कि मुझे कोई भी तुम्हारे बैग पे बैठूंगा तो तुमको ठंडा नहीं लगेगा, पहला चीज ये। उसके बाद मैंने क्या किया ना कि सॉक्स खरीद लिया है,
ठीक है, उसको मैं पहन लूंगा और उसके साथ ही साथ हम सिगारेट, ठीक है ना, मैं पीते रहूंगा कि जिससे मेरा पूरा बॉडी का टेम्परेचर क्या रहे, गर्म रहे। ठीक है, कि मैं, तुम मेरे बिलॉव्ड हो, ठीक है ना, और मैं तुम्हारे हेल्थ के बारे में भी सोच रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि तुम्हारा हेल्थ गड़बड़ नहीं होगा, किसी टाइप का तुम्हारे बॉडी में पेन नहीं आएगा। यहाँ पर वो बताता है डक किससे, कंगारू से। गेटिंग एवरीवन? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी को क्लियर है? बोलिए। वेब फील्ड का मतलब होता है ना झिल्लीदार पंजे, झिल्लीदार पंजे को बोला जाता है। ओके, ओके एवरीवन, यू कैन ऑल्सो अंडरलाइन दैट वर्ड वेब फील्ड। और वेब फील्ड होता है ना हैविंग टोज अनटाइटेड, ठीक है ना, झिल्लीदार टाइप का पंजा होता है, उसी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बोलिए बोलिए, आप सभी बोलिए। वेरी गुड। किसी कोई प्रॉब्लम की एक बार फिर से रिपीट कर दूं इसको, बोलो। अगर बोलोगे तो मैं फिर से इसको रिपीट कर दूंगा। आंसू बोल रहे हैं कि यस सर, एक बार आप इसको रिपीट कर दीजिए। चलिए सुनिए, ध्यान से सुनिएगा जो मैंने बोला। ओके, द डॉग सेड दैट एज इट सेट ऑन द रॉक्स ड्यूरिंग द डे। अब बोल रहा है ना कि जब डॉग्स ने बोला कि जब मैं, ठीक है ना, अरे बात समझ में, तो चट्टान पर बैठा था तो इसके बारे में मैंने सोचा, ठीक है ना, और यही कारण था कि मैं बाजार से जाकर, ठीक है, सॉक्स खरीद के लाता हूँ, रोस्टेड सॉक्स खरीद के लाता हूँ, ठीक है ना, अरे बात समझ में, जो कि मेरे वेब फिट में, ठीक है ना, जो वो क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। और अपने शरीर को, ठीक है ना, वार्म करने के लिए मैं सिगारेट भी क्या करूंगा, स्मोक का यूज करूंगा, पीऊंगा, जिससे कि मेरा पूरा शरीर क्या रहे, सही रहे। ठीक है, गेटिंग एवरीवन? तो यानी कि यहाँ पर वो बता रहा है कि मेरे तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दैट यू विल नॉट सफर फ्रॉम बॉडी पेन। ठीक है, बतख बोल रहा है किससे, ठीक है, डक किससे बोल रहा है, तो कंगारू से। गेटिंग एवरीवन? नाउ लास्ट पॉइंट देखते हैं। सेड द डक एज आई सेट ऑन द रॉक्स आई हैव थॉट ओवर दैट completely and I bought 4 pairs of roasted socks which fit my babe fit neatly, and to keep out the cold I have bought a clock, and every day a cigar I will smoke, all the follow my own dear true love of a kangaroo। ठीक है ना, हरी बात समझ में? तो बोलता है कि क्या बोला ये, ठीक है, सेट द कंगारू। अब देखो कंगारू क्या बोलता है, दिस इज आवर फोर्थ लाइन ना गाइस। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। ओके, यहाँ पे एक लाइन जो है, ओके, मिस प्रिंट है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, विच इज इन योर बुक ऑल्सो, सो रीड इट फ्रॉम योर बुक। आप अपने बुक से भी उसको क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ओके, अब देखो क्या होता है, कंगारू क्या बोलता है, सेड द कंगारू आई एम रेडी ऑल द मून लाइट विल, बट टू बैलेंस मी वेल अ डियर डक सीट स्टेडली and quite at end of my tail, so away they went with a hoop and bound, and they hooped the whole world three times round, and who so happy, oh ho, oh who, as the duck and the kangaroo। Okay guys, so as we have read the last line of this poem, okay, जैसे कि हमने इस पोएम का लास्ट लाइन पढ़ा, तो देखो इसमें क्या होता है ना, कंगारू वाज सेटिस्फाइड विद द डक्स रिस्पांस। अब कंगारू क्या हो जाता है ना, सेटिस्फाई हो जाता है किसके रिस्पांस से, तो डक के रिस्पांस से, एंड गॉट रेडी फॉर द राइड, और वो तैयार हो जाता है बैठाने के लिए, किसको, डक को बैठाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही उसने सुना रिप्लाई जो उसने डक ने बताया था कि मैं सॉक्स खरीद कर लाई हूँ, सिगार का यूज करूंगी, ठीक है, तो ये सारा वर्ड सुन के कंगारू रेडी हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है कि तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है,
तुमको मैं आराम से बैठा सकता हूँ। तो यही देखो, द कंगारू वाज सेटिस्फाइड विद द डक्स रिस्पॉन्स, जैसे कि डक्स ने रिस्पॉन्स किया उससे कंगारू क्या हो गया था, तो सेटिस्फाई हो गया था, एंड गॉट रेडी फॉर द राइड। एट नाइट व्हेन द स्काई वाज फिल्ड विद द पेल लाइट ऑफ द मून, they started their trip with a hoop. The kangaroo asked the duck to hold it firmly, and they traveled around the world 3 times. Both of them enjoyed each other's company. Okay, अब क्या होता है उसके बाद, आ रही बात समझ में ना? तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, मूनलाइट। यू हैव टू मेक मी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मूनलाइट। ठीक है, मेक मी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मूनलाइट। पूरा अच्छा श्रीजा बोल रही है, वेरी गुड। इट मीन्स मून लाइट में, ठीक है ना? आरी बस मैंने अंधेरा वाला राइट नहीं था, वहां पे मून लाइट की बात की जा रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ मून। ठीक है, तो बोलता है कि कंगारू तैयार हो जाता है। अब क्या बोलता है, एट नाइट व्हेन द स्काई वाज फिल्ड विद द पेल लाइट ऑफ द मून। ठीक है, क्या था, तो पूरा जो नाइट था, ठीक है ना, वहां पे मून की रोशनी से, ठीक है, भरा हुआ था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, द कंगारू आस्क्ड द डक टू होल्ड इट firmly and they travel around the world 3 times। अब कंगारू बोलता है, ठीक है, डग से कि मुझे तुम जोर से पकड़ लो, ठीक है, और वे दोनों मिलकर हर एक जगह पे, ठीक है, क्या करते हैं, तो घूमते हैं, और वो एक दूसरे के कंपनी को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं गाइस। सो आई होप आप लोगों को ये पोएम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको प्रॉब्लम है देन यू हैव टू से वंस टाइम मोर। ओके, फाइनली आप देख सकते हो कि कैसे, ठीक है, जो डक है कंगारू के बैक पे बैठा हुआ है, इवन इन टेल पे बोल सकते हैं, और वो एंजॉय कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह जाने का। ओके एवरीवन, गॉट इट? क्या सभी को समझ में आया? अब देखो यहाँ पे ना लिटरली डिवाइस दिया हुआ है। ओके, as we will complete it one day, before telling you about literary devices, I will make you understand about each and everything. Okay, उसके बाद ये alliteration क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं the repetition of a consonant sound at the start or two or more closely placed word। तो repetition आप देखते हो ना, एक ही स्टेंजा के लाइन में, एक लाइन में अगर एक ही टाइप के वर्ड्स का रिपीटेशन होता है, कौन से वर्ड्स का, तो कॉन्सोनेंट वाले, कॉन्सोनेंट साउंड वाले। तो देखो यहाँ पे गुड, ग, ग कॉन्सोनेंट आ रहा है ना, ग। जब मैं एलिट्रेशन आपको पढ़ाऊंगा ना, और आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियोस हमारा पोएट्रिक डिवाइस पे ही रहेगा गाइस। आ रही बात समझ में ना? तो यहां तक पहले आप थोड़ा सा समझ लो। तो देख रहे हो गुड और ग्रेसियस एक साथ है। होप यू होप, हाउ यू होप, तो देखो एच और एच, ह निकल रहा है। क्या निकल रहा है तुम्हारा, जो साउंड निकल रहा है, ह निकल रहा है ना, हप आ रहा है ना। तो ये सब क्या होता है तुम्हारा ना, एलिटरेशन होता है, जब आपका साउंड कॉन्सोनेंट दे, और वही जब वावेल देता है तो वो आपका दूसरा होता है, उसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, गेटिंग एवरीवन? तो बहुत सारी चीजें इसमें जो कि हम लोग समझेंगे। अब देखो बेसिकली थोड़ा सा इसके समरी की बात करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट समरी ऑफ दिस चैप्टर, ओके, तो देखो ये स्टार्ट कैसे होता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, द पोएम गिव्स एन अकाउंट ऑफ अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ डक एंड कंगारू। तो देखो इस पोएम में हम लोग देख रहे हैं कन्वर्सेशन बिटवीन किसका, डक एंड कंगारू का। द डक प्रेजेस द कंगारू फॉर इट्स एबिलिटी टू होप एंड विजिट प्लेसेस। यहाँ पे जो डक है एडमायर करता है, ठीक है ना, प्रेजेस करता है, प्रशंसा करता है किसकी, तो कंगारू की, उसकी योग्यता पे कि वो एक जगह से दूसरी जगह होप करके कैसे विजिट करता है और घूमता है। द डक फाइंड्स द पॉन्ड बोर्डिंग एज इट हैज टू स्टे देयर फॉर एवर। अब देखो डक जो है ना, पॉन्ड में रहकर अपने आप को बोर्ड फील करता है, और बोलता है, वो सोचता है कि हमेशा मुझे इसी पॉन्ड में रहना है। एंड ही इज कंपेयरिंग हिज लाइफ टू कंगारू, एंड वो कहता है कि उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, वो हुप एक जगह से दूसरी जगह काफी आसानी से चला जाता है घूमने के लिए, बट आई हैव टू ओनली सर्वाइव ऑन दिस पॉन्ड। ओके, अब आगे देखते हैं। The duck requests the kangaroo to make it sit on its back and go on a trip to place like the D and the Jelly Boli, crossing lands and sea। अब देखो डक जो है रिक्वेस्ट करता है किससे, कंगारू से। अरे बात समझ में ना, डक रिक्वेस्ट करता है किससे, तो कंगारू से, और बोलता है कि मुझे अपने बैक पे बैठा लो, और ये जो जगह का नेम है जेली बो ली, ये सारे जगह पर, और लैंड्स और सी के किनारे मुझे घुमाओ। इट प्रोमिसेस दैट इट वुड रिमेन क्वाइट एंड वुड ओनली क्वेक, और बोलता है कि मैं एकदम स्थिर से रहूंगा,
ठीक है ना, केवल क्वैक क्वैक बोलूंगा टू शो माई एक्साइटमेंट। सारी बात समझ में ना, और उसके सिवा कुछ नहीं करूंगा। द कंगारू रिप्लाइज, अब कंगारू क्या रिप्लाई करता है, दैट इट विल हैव टू थिंक ओवर इट, वो बोलता है कि मुझे थोड़ा सा इस पे सोचना पड़ेगा, सोचने के बाद आई विल टेल यू, ओके। बिकॉज द डॉग्स वेट एंड कोल्ड फीट में गिव इट बॉडी पेन्स, बोलता है लेकिन जैसे ना वो सोचता है और बोलता है क्या कि तुम्हारा जो शरीर वेट है, भींगा हुआ है, तुम्हारे फिर जो तुम्हारे जो पैर हो क्या है काफी ज्यादा ठंड रहता है, वो क्रिएट करने लगेगा मेरे बॉडी में पेन को। गेटिंग एवरीवन? तो ऐसा सारा बात बोलता है कौन, तो डक बोलता है, ओके। कंगारू बोलता है किससे, डक से, सॉरी, ठीक है। द डक सेज, उसके बाद डक क्या बोलता है, दैट इट हैज मेड अरेंजमेंट फॉर द kangaroo safety, it had got out 4 pairs of frosted socks which fitted the babe shaped fit L. Additionally, it would wear a clock to save itself from the cold weather and would smoke 1 cigarette a day too. अब देखो डक क्या बोलता है, जब कंगारू ने बोला कि मुझे थोड़ा सा सोचने दो, अगर मैं तुम्हें बैठाऊंगा तो एज आई नो तुम्हारा पैर जो होता है काफी ज्यादा ठंड होता है, ठीक है ना, तो उससे मेरे बॉडी में पेन क्रिएट होने लगेगा। तो इधर से डक बोलता है कि मैंने जब रॉक्स पे बैठा था एक दिन तो इसके बारे में मैंने सोचा, और उसी दिन मैंने क्या किया ना कि 4 सॉक्स खरीद कर लाया, 4 सॉक्स खरीद कर लाया जिसको मैं अपने फीट पे पैर में पहन लूंगा, एंड इट विल नॉट क्रिएट कोल्ड, कि ये ठंडा क्रिएट नहीं करेगा, उसके बाद आपको ठंड नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है, ठीक है, और इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, सिगार भी पीऊंगा प्रतिदिन। द डॉग लव्स द कंगारू एंड सो वांट्स टू टेक प्रिकॉशन फॉर इट्स वेल बीइंग। अब देखो पहले ही से ये चाहता था, देखो कंगारू को ये बहुत ज्यादा लाइक भी करता था, ठीक है, एज अ फ्रेंडली नेचर। अरे बस समझ में ना, तो वो पहले ही बोला कि मैं ये सारे बात सोच चुका था कि मुझे ये करना है, कि तुम्हें इस अगर मैं तुम्हारे साथ घूमने जाता हूँ तो तुम्हें कोई हार्म ना पहुंचे, ओके। अब देखो कंगारू एग्रीज टू टेक द डक ऑन अ ट्रिप। अब इसके बाद क्या होता है ना, कंगारू एग्री कर जाता है कि ठीक है तुम मेरे साथ ट्रिप पे कहीं पे घूमने चल सकते हो, और इट आस्क द डक टू सिट फर्मली एंड नॉट टू मूव, और बोलता है ना, कंगारू बोलता है डक से कि मुझे जोर से पकड़ लो और कहीं मूवमेंट मत करो, नाउ लेट्स गो एनीवेयर एल्स, ओके गाइस, ओके। तो क्या आप सभी को ये समझ में आया क्लियरली? टेल मी एवरीवन, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? आप सभी मुझे बताइएगा। No problem, sir. I have given here. You can see a kind of cloth made of wool with a smooth surface. Okay. एक टाइप का देखो a kind of cloth होता है, ठीक है ना, जिसको उल की सहायता से बनाया जाता है, जो स्मूथ होता है, उसका सरफेस काफी ज्यादा क्या होता है, स्मूथ होता है। ओके एवरीवन, इट इज अ शॉर्ट काइंड ऑफ हुक्का, नहीं देखते हो पीना, लोग पीते हैं उसी को सिगार कहते हैं, जिससे स्मोक रिप्रोड्यूस होता है, जनरली हम लोग देखते हैं मूवी में, ओके, उसी को सिगार बोलते हैं। ओके गाइज, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम गाइज देन टेल मी। हाँ रिशु बोलिए, वेट। सर मीनिंग ऑफ क्लोएक। क्लोएक, ओके, और उसके बाद आप पूछो। क्लोएक मींस होता है ना, एक होता है लूज गारमेंट जो बोलते हैं ना, लूज गारमेंट, यही इसका मीनिंग होता है, ओके। ओके सर। एनीवन मोर गाइस? Okay, so as you have read guys, you have to make me understand about this poem. I have to see also how many of you have got this poem. कितने लोगों को ये पोएम अच्छे तरीके से समझ में आया? तो चलिए कुछ बच्चे से क्वेश्चन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ओके। देखो कुछ बच्चे निकलने लगे, चलो रिद्धि आप बताओ तो, स्पीक रिद्धि।
यस सर। सर फर्स्ट स्टैंजा में ये है कि जो डक है वो कंगारू से कहता है कि मुझे भी तुम्हारी तरह ही बनना है, तुम फील्ड्स और बनना है। वाटर चल सकते हो, मतलब काश मैं तुम्हारे जैसा ही होता, जैसे तुम अच्छा। फील्ड वाटर दोनों पे चल सकते हो और ऐसा लगता है तुम कभी नहीं रुकोगे। और मेरी लाइफ तो बोर हो गई है इस बैड पॉन्ड में। मैं हमेशा इसी पॉन्ड में रह के बाहर की मतलब दुनिया नहीं देख पाया। आई विश कि मैं तुम्हारे जैसा ही रहता, ये डक कंगारू से कहता है। हम्म। सेकंड ओके। स्टैंजा भी। हाँ हाँ बताओ। सर सेकंड स्टैंजा में ये है कि जो डक है सर वो कंगारू से कहता है कि क्या तुम मुझे अपने बैग पे बैठा के राइड करवाओगे। अम, अ, अ, मैं शांत बैठा रहूंगा और मैं कुछ नहीं करूंगा, बस क्वैक क्वैक ओके करूंगा आई विल और टॉक टू लेटर, आपसे मैं बाद में पूछूंगा। आई विल आस्क यू लेटर। ओके नाउ लेट मी आस्क फ्रॉम अनदर। चलिए अनुष्का। Yes, sir. जस्ट टेल मी, बोलो। So basically, this poem is the conversation between a kangaroo and the duck. Kangaroo try to say duck that how you jump like that, and the duck life is very boring in this pond, in this nasty pond. She wishes to jump like kangaroo, and she wants to live the life like kangaroo. Uh, Duck requested that give me a ride on your back, and she also tells that कि मैं एकदम silent रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, and she wants to visit some places like D. Kangaroo said to duck that मुझे कुछ time दो सोचने के लिए. What would I do? Kangaroo said that your feet are wet and cold, and it create a body pain. Duck said that I have already bought 4 pairs of warm socks which fit on me very perfectly. And to ओके। avoid cold, I have bought shrug, that means a long cloth. डक ये सब कंगारू को प्रोटेक्ट करने के लिए बोल रहा था कोल्ड से. And finally here the duck was ready to give the duck a ride at night, and kangaroo stayed to hold it, and they travel world 3 times, and they both are very happy. वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट हु वांट टू स्पीक नेक्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट कौन बोलना चाहते हैं। अदिति। ओके। शुभम। इसलिए बोलिए शुभम। यस सर। सर सर ये जो पोयम है वो एक डक और एक कंगारू के बीच कन्वर्सेशन के बारे में है, जिसमें कि डक कंगारू से बोलता है कि मैं इस नेस्टी पॉन्ड में रहकर बोर हो गया हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ और होप करना चाहता हूँ। ओके। और उसके बाद वो बोलता है डक कंगारू से, मैं तुम्हारे पीठ पे बहुत शांति से बैठूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा। तो कंगारू बोलता है कि लेकिन तुम्हारे पैर बहुत ही ठंडे हैं, उससे मुझे परेशानी हो सकती है। Okay, Suman, look first. You have to read it properly. You are speaking good, but you have to reform it also. Okay, try to improve yourself while speaking. जब आप बोल रहे हो उस समय थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है ना। जैसे आप स्टार्टिंग से बोल रहे थे, स्टिल यू आर स्पीकिंग लाइक दिस। ओके, तो थोड़ा सा इम्प्रूव करो। whenever I'm just going to teach you, okay, you have to must pay your attention towards study and try to understand each and everything. जब हर एक वर्ड को क्लैरिटी के साथ समझाया जा रहा है, तो बोलने की भी कोशिश करो। जब आप बोलोगे ना, आई नो वेरी वेल अबाउट दैट, आपके माइंड में है कि ये कंटेंट मुझे बोलना चाहिए, बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इन अ वेरी गुड वे। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डू सच अ वर्क, डेफिनेटली इट विल हैपन। इट टेक्स टाइम। हमारी बात समझ में ना, तो थोड़ा सा बोलो, अधिक बोलो, इगट दिखाओ, डेफिनेटली इट विल बी ओके। हमारी बात समझ में? तो चलिए गाइस, व्हाट इज योर होमवर्क? यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, यू हैव टू राइट द समरी of this poem also, and as well as try to understand about poetic device. In our next class we will
टॉक अबाउट पोएट्रिक डिवाइस और उस पर हम लोग काम करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल वंस अगेन सी दिस ऑल पोएम्स व्हिच वी हैव रेड, और उसके बाद फिर से हम यही सभी पोएम्स को देखेंगे और उसमें एलिटरेशन को समझेंगे, ठीक है ना, एजोनेंस को समझेंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। यू हैव टू कंप्लीट ओके द समरी ऑफ दिस चैप्टर, और आगे उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।